Hello everyone and welcome to Disha's Authors Corner. Today I have with me India's leading educator for NET and JRF exams, none other than Toshiba Shukla. She is a top educator at Byju's right now. She has qualified GATE exam twice. She is a gold medalist, university topper, and also she has taught UPSC aspirants in the past after writing her mains exams. So Toshiba Shukla ma'am has trained and successfully guided lakhs of aspirants who are preparing for JRF and UGC NET exams. Today we are going to ask her questions about the exam, and those who are planning to appear for the UGC NET exam, be prepared to get the ultimate guidance for your exam preparation. So welcome ma'am, and thank you so much for being here today. We are very happy to host you at Disha Publications office. Thank you so much. The pleasure is mine, and thank you for this introduction. But yes, I am really very honored to be associated with Disha Publication, and I'm sure with this, the relationship we are having now will benefit lakhs of aspirants in the future. I have no doubt about that. Yes, surely. So let us start with some of the most basic questions, especially for the starters who are going to prepare for this exam for the first time. So what is exactly UGC NET? I mean, we all know that it is there for, assistant professor posts and those who want to do their PhDs. Yes. But what exactly is this paper? Is this a very specific, subject-specific paper? And what is the difficulty level? Okay, sure. So first of all, UGC NET, as you rightly mentioned, it's an examination that is given by lakhs of students who want to make their career in academia. So जिनको professor बनना है, assistant professor बनना है, and second, the people who want to do PhD. So अगर आपको research करना है and you want to contribute in the nation building, जो आप सुनते हो, it's innovation from Korea, it's innovation from this country. But if you want to do such innovation in your country, तो आपको अगर PhD करना है with a stipend, so that you have to qualify JRF. एंड जैसे आपने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए नेट का एग्जामिनेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इवन इट्स इंपॉर्टेंट कंपेयर टू पीएचडी. एक बार अगर आप पीएचडी नहीं आपका हुआ है, बट दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो दैट इज द क्राइटेरिया दैट यू हैव टू हैव. अगर आपको इस कंट्री के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना है, तो नेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप पढ़ा पाओगे. तो इसका पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का? अच्छा, पैटर्न ऐसा है कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं, और पेपर 1 कॉमन होता है. एंड लाइक इसके एग्जाम का बोल सकते हैं, ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज गिवन बाय 81 the students who are coming from 81 different backgrounds. So paper 2 is like, आप सोचिए, forensic science से लेके English literature से लेके political science, computer science. So everyone in those different fields, अगर आपको देना, प्रोफेसर बनना है, तो ये एग्जाम आप देते हो. और इसका पैटर्न है पेपर 1 पेपर 2. पेपर 1 पेपर 2 both are compulsory, और you have to qualify both of them obviously, because ultimately score दोनों का ही ऐड होता है. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ओवरऑल द स्कोर इज लाइक 300 क्योंकि एक क्वेश्चन. बट बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन एक्चुअली प्ले. एंड अगर कॉन्फिडेंस हो, आपने पढ़ के अच्छे से गए हो, तो यू कैन टोटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स. ओके, सो अभी रिसेंटली तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर 1 काफी ज्यादा ट्रिकी कर दिया है यूजीसी ने. मतलब अर्लियर इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते थे, बट अब होने लगे हैं. और पेपर 2 का तो सिलेबस वास्ट होता ही है, कोई भी सब्जेक्ट हो. सो हाउ शुड स्टूडेंट्स डिवाइड देयर टाइम टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2? श्योर. सो पेपर 2 क्योंकि स्टूडेंट का खुद का होता है, सो क्योंकि बच्चे ने वो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो वो हमारा खुद का अपना पेपर होता है, एंड स्टूडेंट्स आर यूजुअली वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट पेपर एज वेल. तो पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका खुद का सब्जेक्ट है, एंड वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे उसके साथ जस्टिस करते हो. बट लेटली दैट हैज बीन सीन, पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है. एंड एज आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, पेपर 1 इज राइटली कॉल्ड एज द किंग मेकर. सो आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होगा हिस्ट्री में इतिहास गवाह है कि किंग मेकर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? सो अगर इवन इफ यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन योर पेपर 2 और पेपर 1 में आप कहीं अटक गए, तो आपका वो JRF छूट जाएगा, और आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहोगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. सो माय सजेशन हैज ऑलवेज बीन कि डू नॉट निग्लेक्ट एनी पेपर, ईदर इट्स योर ओन पेपर और पेपर 1. पेपर 1 का इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि जैसे यू मेंशन्ड एज वेल, क्वेश्चंस थोड़े से अब और कठिन आने लग गए हैं, कॉन्सेप्चुअल आने लग गए हैं. दैट्स वन चेंज वी हैव ऑब्जर्व्ड. So paper 1 का बेसिकली सिलेबस क्या होता है? What do they usually test? Okay, so paper 1, जैसे कि it's a general paper, right? So everyone has to give, and it's more like on a journalist approach. So it has 10 units from different like subjects. So we have teaching, research, we have communication. एक तरीके से ऐसा आप सोच सकते हैं कि ये जो professors हैं या research scholars हैं, इन सबको ये सारे subjects लगेंगे. If you are good in teaching and research,
that will be beneficial for you in your future career as well. Communication जो कि एक है बहुत important है कि कैसे आप अपना विचार को रख पाते हो, right? Many people have a lot of knowledge but they are not able to deliver that content. Being a teacher, you have to be a good communicator. Yes. So communication is there. Then they have lately included some dynamic subjects like environment, higher education, logical reasoning. So इससे उनको ये शायद टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कितना बच्चा aware है as per the recent happenings, right? So for example, if there is a new scheme launched by the government like Swayam hai, so how many channels are there? So students, are they updated or not? And maybe in terms of ICT, तो अगर आप पढ़ा रहे हो, you're a professor, or even if you're a research scholar, आपको अपनी thesis लिखनी होगी, and it could not be done without computers. So the basic knowledge of ICT being one chapter here. तो काफी सारे डायनामिक है, पढ़ने में बहुत मजा भी आता है और थोड़ा पसीना छूट जाता है अगर सही गाइडेंस ना मिले तो. So more or less, this paper tests your general awareness, Yes, right? exactly, precisely, general awareness. मतलब general awareness with some specific subject knowledge as well in certain areas, but yes, Okay. general awareness. और अगर बात करें mathematical ability की, logical reasoning की, so are these questions basic level जो कि हमने 10th, 11th, 12th में पढ़ा होगा या फिर थोड़े higher level के होते हैं? जी, मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा है कि 10th तक का नॉलेज होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, बट आयरनी ये है कि हमको 10th वाला नॉलेज भी हम भूल जाते हैं, हम इतना कुछ याद पढ़ लेते नहीं हैं ना. रहता है. अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि अच्छा 10th में हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज वेरी सिंपल, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट यूपीएससी आल्सो. अगर आप देखेंगे यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, वो भी Yes. 60, बट स्टूडेंट्स को वो भूल जाते हैं क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया रहता है. सो इट्स वेरी बेसिक, ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से बहुत हाई फाई पूछते हैं, बट द थिंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर. एंड व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आपने फॉर्मूलाज आपको हैं, आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पता है जो हम कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, देन यू विल बी एबल टू इजीली मैनेज इट. तो आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि हमने एज सच हमारा सब्जेक्ट तो नहीं होता स्कूल हाँ में, जी, हाँ जी. और जैसे कि कैलेंडर होता है या और फिगर्स वगैरह जो होती है लॉजिकल रीजनिंग में कंसेप्ट्स होते हैं, जी. तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिक्स टिप्स आपको चाहिए होती हैं. यू नीड समबडी टू गाइड यू हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एग्जैक्टली तो उसके लिए यू नीड अ मेंटर, राइट? राइट. और कोई अगर सिर्फ बुक ऐसी कोई ले ले जिसमें ये चीजें हो, तो क्या मतलब सिर्फ बुक की हेल्प से यू कैन यू लर्न दोस ट्रिक्स, और डू यू नो डेफिनेटली नीड अ टीचर? It depends. वैसे मैं बोलूंगी it's like not a black and white area. I mean, there are students who can just study from a book and qualify, but there are students who definitely need a mentor and then खुद पढ़कर उनसे concept समझकर. So I guess दोनों का role बहुत important है, and अकेले teacher से नहीं होता, because I am a very old school in terms of I have to have a book in my hand when I'm studying. So एक book लेके underline करके अगर आप वो कर रहे हो तो उससे आपकी preparation और strong होती है. But हाँ, कुछ ऐसे concepts होते हैं जो मैं कुछ students को बताती हूँ कुछ tricks के through. जैसे बहुत ही कठिन है तो मैंने कुछ कहानी बता दी, मे बी महाभारत की कोई कहानी से रिलेट कर दिया, तो स्टूडेंट्स रिलेट इट वेरी वेल एंड दे रिमेंबर इट. एग्जामिनेशन में वही उनको याद आता है. सो इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, बुक एज वेल एज अ मेंटर, व्हाट आई फील. और अगर हम बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन की, सो इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड यू नो देयर इंग्लिश इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वुड दैट पेपर बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, और वो कैसे इसको अप्रोच करे इस पर्टिकुलर? एज सच अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहा है तो वैसे यू हैव अ ऑप्शन टू सेलेक्ट द लैंग्वेज. तो आपको पूरा लैंग्वेज वो हिंदी में भी दिखेगा, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बट हाँ, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है. तो ऐसा नहीं कि आप उसके लिए बहुत ही बड़ा हाई फाई न्यूज़पेपर पढ़ो. इवन इफ यू आर रीडिंग अ नॉर्मल हिंदी न्यूज़पेपर एज वेल, टू रीड दैट पैराग्राफ एंड टू ग्रास्प, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा कोई भाषा या माध्यम बाध्य नहीं होता. अगर आप किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, हिंदी माध्यम से आ रहे हैं या आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, तो इट इज रियली नॉट दैट डिफिकल्ट. बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, बहुत ज्यादा अवेलेबल हिंदी में नहीं होता है और वो इंग्लिश में ज्यादा होता है. तो यहाँ पे एक बुक आपको हेल्प कर सकती है या एक मेंटोर हेल्प कर सकता है कि कैसे वो हिंदी इंग्लिश दोनों को मैनेज कर ले, लाइक दैट. ओके. और अगर हम पेपर 1 में बात करें इन सब्जेक्ट्स की, जैसे एनवायरनमेंट और लॉजिकल रीजनिंग, इनमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं जी. So is it wise for students to altogether leave these areas and focus on other subjects? Okay. So I would say leaving is never wise. I mean, even if you're studying for anything, if it's a very big examination where syllabus is not clear enough, जैसे सिविल सर्विसेज होता है, तो स्टूडेंट्स माइट ली तब भी वहां पे नहीं छोड़ के जाते. दे स्टडी एवरीथिंग, राइट, बिकॉज रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी. तो यहाँ पे तो 10 यूनिट्स हैं, उसमें भी अगर आप छोड़ के जाओगे, सो यू आर ऑलरेडी मिसिंग ऑन द द रैंकिंग और व्हाटएवर द सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ, छोड़ के कुछ मत जाइए, पढ़ के सब जाइए. बट हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स करने में मजा आता है तो उसको अच्छे से करके जाओ, किसी को टीचिंग रिसर्च अच्छा लगता है तो उसको अच्छे से करके जाओ. बट द अदर वीकर एरियाज, ट्राई डूइंग समथिंग, एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
जो आपको पता है कि हर बार आते हैं, तो वो करके जाओ। ये बहुत बड़ा इट्स अ बिग मिस्टेक और ब्लंडर कि इफ यू आर लीविंग 3 यूनिट्स, बिकॉज एनीवे आप बोल रहे हो कि ठीक है आई एम आउट ऑफ द द लिस्ट, बाकी जो बच्चा इतना पढ़ रहा है वो सब करके जा रहा है, सो दैट्स नॉट अ वेरी एडवाइजेबल थिंग आई वुड से। सब करके जाना चाहिए, मे बी यू हैव सम स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड सम वीक एरिया, दैट्स टोटली फाइन। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि जो आ रहा है एटलीस्ट उसमें से कर लो, हाँ जी। तो क्या ऐसा होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस कभी रिपीट होते हैं जी और क्या PYQs अगर हम करके जाएं तो क्या वो काफी हेल्पफुल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब PYQs तो मैं बोलूंगी कि ब्रेड एंड बटर, या ऐसा बोलते हैं किसी भी चीज का प्रिपरेशन का, आप कोई भी एग्जाम दो, जब तक आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं पता तो आप कैसे पता करोगे कि आगे आपको क्या पढ़ना है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर यू गिव एनी एग्जामिनेशन, सबसे पहले पुराने पेपर्स उठा के देखिए। और पुराने ऐसा नहीं कि हम एकदम 2012-10 में चले जाए, बिकॉज पेपर बहुत बदल गया है, ट्रेंड्स हैव बीन चेंजिंग एवरी ईयर। सो बेस्ट इफ यू कुड सॉल्व 10 years पेपर, बट आई वुड से डू नॉट इग्नोर सॉल्विंग एटलीस्ट 4-5 years PYQs, बिकॉज इससे काफी आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ ह्यूज सिलेबस। कहीं ना कहीं जो पढ़ोगे, इन्वायरमेंट जैसे आपने बोला, इन्वायरमेंट में इतना कुछ है कि जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, बट एटलीस्ट इफ यू नो कि फाइन दिस इज बीइंग आस्क्ड, पोल्यूशन में ये पूछ रहे हैं, इसमें डिजीजेस में ये पूछ रहे हैं, सो यू विल बी एटलीस्ट फोकस्ड ऑन दोस टॉपिक्स व्हेन यू आर स्टडीइंग समथिंग। सो PYQs आर अ मस्ट, you have to do. Okay, and PYQs will definitely help us to strengthen all these areas, right? Exactly, certainly. और अगर बाकी पार्ट्स की बात करें हम, जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आई गेस जो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हाँ, होते हैं, हाँ कुछ जी। तो ऐसे देते हैं वो बिल्कुल, इंटेंशनली जो आप ना बिल्कुल। कर पाओ सॉल्व। हाँ। तो अगर वो रहने के बाद भी आप बाकी सब अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके जाओ, तो कितना हम टारगेट कर सकते हैं उसको पेपर 1 में? बिल्कुल। सो जैसे आपने एकदम सही बात बोली, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनते किसी को भी, और मैं उनको बोलती हूँ E² क्वेश्चंस, एग्जामिनर्स ईगो क्वेश्चन। तो हमें एग्जामिनर की ईगो की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपना ईगो नहीं बनाना चाहिए उनको। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जहां एक क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखे, डर गए, एंड दे काइंड ऑफ समराइज की पेपर टफ है। नो, पेपर टफ नहीं है, ये 2 क्वेश्चन टफ है जो एग्जामिनर ने रखे हैं कि नहीं, अपने ईगो के लिए, ईगो के लिए कि भाई मैं आपसे ज्यादा हूं ना, आपने कितना भी पढ़ लिया बट आप मुझसे कम ही हो। हाउ कैन यू आंसर एवरीथिंग? Exactly, you cannot, and you should not try also answering everything. So it's okay, you can easily leave such 2-3 questions. Do not take it too much on your, कि अरे मैंने तो सब पढ़ा था, कैसे नहीं बना। उसको क्वेश्चन देखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए मैं आप तक बाद में आऊंगा अगर मेरे पास टाइम बचेगा। यू कैन टोटली लीव सच क्वेश्चंस। और बाकी जो है, मतलब एनीवे इट्स लाइक यू, इट्स अ वेरी फेमस रूल, 80-20 रूल। अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको 42 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आराम से बन जाएंगे। सो मतलब अगर आपको 8 भी नहीं बन रहे ना, तो आई एम सेइंग दैट इज ओके, फाइन, नो इश्यूज, बट जो आप कर रहे हो उसको आप बहुत अच्छे से करके जाइए। सो इट्स टोटली फाइन लीविंग क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। कोई आपको आके यहाँ पे आपको नहीं पनिश करेगा कि आपने 2 क्वेश्चन क्यों छोड़े। वैसे हमें पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर 1 या पेपर 2? It's very subjective, but usually students do paper 1 क्योंकि उनको ऐसा लगता है पेपर 1 जल्दी है, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और लास्ट में क्योंकि उनका खुद का सब्जेक्ट होता है, 100 questions है, they have been studying, like for example I come to computer science, so I know that questions will be from operating system, computer network, तो मैं जल्दी कर लूंगी। पेपर 1 could be full of surprises, but again it's like a very subjective। पेपर 2 भी कुछ ऐसा आजकल आने लग गया है, हमने 1-2 साल से ट्रेंड देखा है कि उसमें भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। तो आई हैव सीन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पेपर 2 भी पहले अटेम्प्ट करते हैं, देन दे कम टू पेपर 1, और ये इनफैक्ट स्ट्रैटेजी बहुत काम आई है बच्चों के, जैसे स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस, वो पहले पेपर 2 कर लेते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, देन बाकी का जो टाइम है वो आराम से पेपर 1 को देते हैं। सो दैट कुड आल्सो बी डन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या सूट करता है। बट आई वुड सजेस्ट गिव सम मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको समझ में आ जाता है हाउ वेयर यू आर लीडिंग। सो आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरफ मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। और अगर हम बात करें रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की, तो इनमें मैंने देखा है कि बहुत सारे थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है कि ये थ्योरी में क्या है, मतलब काफी ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा उनके लिए। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स दीज एरियाज? आई वुड सजेस्ट कि जो जैसे हमारा पेपर 1 में ना कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, तो थ्योरी सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाकर उनके नोट्स बनाकर, स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दे डोंट मेक नोट्स। मतलब इवन इफ यू हैव अ बुक, try to underline from that book, maybe some other book, any other current affair note you saw, तो खुद के नोट्स बनाइए and try to just revise again and again। मतलब वो जो हिंदी में बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आप कितना भी कर लें, अल्टीमेटली हर एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा तो रट्टा लगाना ही पड़ता है, राइट? इवन इफ यू आर लाइक totally going by logic, you have to memorize few things, so try to memorize them। और वो चीज ऐसी होनी चाहिए वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, right? Because that is not in, like, it's not a very dynamic part, it's a theory part,
एंड दे Yes. विल आस्क दीज थ्योरीज, दे विल आस्क दीज कॉन्सेप्ट. तो उनको सबसे पहले नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, एंड एग्जाम के एटलीस्ट दो महीने पहले जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग देम. Okay. आई थिंक इट विल बी लाइक मोर देन इनफ. सो आपके हिसाब से पेपर वन में सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए, जो हाँ जी. जिसमें से मतलब सिलेबस भी ज्यादा है और टाइम लगेगा उसको कवर करने में? मेरे हिसाब से ऐसे सब्जेक्ट को देना चाहिए जो बच्चों ने कभी पढ़े नहीं है, तो पहले उनको कर लो. बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसा सब्जेक्ट जैसे डर लगता है वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, राइट? सो इट्स लाइक द ईटिंग दैट फ्रॉग, इफ यू हैव रेड दैट बुक बाय ब्रायन ट्रेसी. तो उसमें उन्होंने बोला है कि ईट दैट फ्रॉग, मतलब जो सबसे पहले आपको लग रहा है बहुत डरावना है उसको लास्ट तक ना छोड़िए, उसको पहले ही कर लीजिए. एंड डरावने सब्जेक्ट्स आई कुड से जनरली मेरा लाइक आई हैव लाइक 5 years of experience teaching UGC नेट. बच्चों को इन्वायरमेंट में, हायर एजुकेशन में और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत डर लगता है. ओके. तो अगर आप अभी नया प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाइए, इन्वायरमेंट उठाइए, उसका बेसिक करिए, एसडीजी, एमडीजी, पोल्यूटेंट्स, डिजास्टर, साइक्लोन्स, राइट? लॉजिकल रीजनिंग में, बिकॉज इंडियन लॉजिक बहुत टफ है और इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं उसमें, तो हेतु, व्याप्ति, वो सारी चीजें कर लीजिएगा. देन मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट. सो आई वुड दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने इतना तो कर लिया है. तो मैम आप इतने टाइम से नेट यूजीसी एस्पिरेंट्स को कर रही हैं ट्रेन, तो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अच्छे से पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स पेपर में जाके कर देते हैं जिससे कि वो कट ऑफ मीट नहीं कर पाते? आपके सबसे व्हाट मिस्टेक्स शुड स्टूडेंट्स अवॉइड ऑन द एग्जाम डे? एग्जाम डे के बाद अगर हम बोलें हाँ, कि या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे भी? प्रिपरेशन में तो ऐसा है कि देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नोट्स मेकिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितने भी, बट बिकॉज ऑल दीज स्टूडेंट्स, ये बच्चे नहीं है, दे हैव ऑल डन देयर मास्टर्स एंड दे Yes, आर of डूइंग देयर course. मास्टर्स. Yes. सो बच्चे हम बोलते हैं बट यू ऑल आर सो मैच्योर, आप इतना पढ़ के आए हो, तो नोट्स की वैल्यू आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता. सो ऑलवेज हैव जॉटिंग्स, ऑलवेज हैव शॉर्ट नोट्स, हैव दो स्टिकी नोट्स, व्हाटएवर यू से. द बोलते हैं ना माहौल और वाइब, आजकल के स्टूडेंट्स ज्यादा इस वर्ड से रिलेट करते हैं, वाइब से. सो किसी भी चीज की पढ़ाई में भी वाइब इंपॉर्टेंट है. तो आप जब तक ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट फील टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन. और गलती जो आप करते हो वो है पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करना और 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट नहीं लगाना. इवन इफ यू आर स्टडीइंग एनी बुक, उसमें भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. हैव अ टाइमर में पेपर 1 का मॉक टेस्ट दीजिए, पेपर 2 का दीजिए. तो अगर आप वो नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट द एग्जामिनेशन हॉल वाला फील. So that is very important, do that. And if I talk about the D-Day में तो स्टूडेंट्स इतनी गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, नॉट नहीं पढ़ेंगे. अरे मैम देखा नहीं, मैम गलती होगी. तो ऐसे ही गलती नहीं, गुनाह करके आए हो. इतना पढ़ने के बाद यू आर नॉट सीइंग नॉट. सो प्लीज नर्वस नहीं होइए. ये क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स गेट एंशियस एंड नर्वस, राइट? सो बिल्कुल इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन. आपकी एक दिन आप 3 घंटे बैठे हो, उसको वैसे ही लीजिए. बहुत ज्यादा घबरा के दोगे तो आप ऐसी सिली मिस्टेक्स करके आ जाओगे, राइट? और उसका खामियाजा आपको अगले साल तक भुगतना पड़ता है. So be relaxed, be chill, and I have this motto even when I was preparing, and I'm teaching as well, कि हंस के तैयारी करिए, खुश रह के करिए. It will have a very positive impact on everything. सो मैम ये तो आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, बट वैसे अगर देखा जाए तो हाउ मच टाइम डज अ स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1? I would say at least 4 months, मतलब 4 at least months. 4 months, yeah. That Okay. too I'm saying like considering कि नहीं टाइम होगा, पेपर 2 पढ़ना होगा. But if a student can think कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, तो no, it's actually very difficult. You can do certain topics 1 महीने में जो आपको लगता है important है, but जो आजकल जैसे लेवल आ रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में पेट्रोल और डीजल इंजन का डिफरेंस पूछ लिया, तो आप खुद सोचिए कि 1 महीने की प्रिपरेशन में कि वो उसका एयर टू फ्यूल रेशियो क्या होता है, एंड दे आर आस्किंग दिस इन पेपर 1. सो यू हैव टू नो द नर्व ऑफ द पेपर, और उस हिसाब से एटलीस्ट आप 3 महीने 4 महीने बिल्कुल आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी है पेपर 1 की, तभी आप पेपर 1 में अच्छा कर पाओगे. ओके. और पेपर 2 में अगर किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो क्या उसे साथ के साथ लेके चलना चाहिए, पेपर 1 के साथ पेपर 2, या फिर वो बाद में या पहले करना चाहिए? मेरे हिसाब से साथ में लेना चाहिए, बिकॉज जैसे अगर आप टाइम टेबल भी बना रहे हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पेपर 1 को दीजिए, 2.5 घंटे बाकी अपने पेपर 2 को दीजिए. Okay. मतलब ऐसा कुछ भी छोड़िए मत कि इसको मैं बाद में करूंगा. दे शुड गो साइमल्टेनियसली. एंड ये 4 महीने मैंने पेपर को, इट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो. यूजुअली स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट एन ईयर बिफोर, बिकॉज दे हैव टू डू द पेपर 2 एज वेल. सो साथ ही साथ लेके चलिए, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी. और पेपर 1 कई बार आप छोड़ देते हो, तो इसलिए 4 महीने पहले भी कर लोगे तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप कर लोगे जो बहुत है. टीचिंग, रिसर्च हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, उससे आपका थोड़ी तो नैया पार लग जाएगी. बट आई वुड से कि दोनों ही साथ में लेके चलना चाहिए. दैट्स अ वाइज स्ट्रैटेजी. एंड व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स यू हैव फॉर द एग्जाम डे? एग्जाम डे, एज आई टोल्ड, कि बी हैप्पी. एंड बिकॉज मी, ऑफ कोर्स मी बीइंग एन एस्पिरेंट, ऐसा तो नहीं हम अचानक से पढ़ाने लग गए. हमने भी ये सारी चीजें दी हैं, हमने भी पढ़ा है, हमने भी वो एंजाइटी, नर्वसनेस, राइट? सो सब कुछ बिन देयर, डन दैट. एक ही चीज जो मुझे आई कैन एक्चुअली पास ऑन एज अ स्ट्रैटेजी,
प्लीज नर्वसनेस में चीजें खराब मत करिए, बिकॉज स्टूडेंट स्टडी सो मच, आप इतना पढ़ते हो और लास्ट के 2 दिन पहले घबरा जाते हो। बिल्कुल मत घबराइए, एक दिन पहले जाके मूवी देख कर आइए, चिल करिए एंड जस्ट ये सोचिए कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है एंड आई कैन डू दैट। द कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बच्चों को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन की भी उतनी जरूरत पड़ती है। सो इफ यू हैव एनी सच इशू, यू कैन ऑलवेज गो फॉर सच मोटिवेशनल स्टोरी, बट प्लीज डू नॉट लूज ऑन दैट कॉन्फिडेंस। That's great. So, अब बात करते हैं आपके बुक के बारे में. हाँ जी. You've recently written a book for a go-to guide for UGC NET with Disha publication. जी. So, इस बुक में आपने वो कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं जो आपको लगता है कि अभी और बुक्स में नहीं है और वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी? बिल्कुल. So of course it's a very something that I have been wanting to do. Finally वो चीज हो गई है और ये जो बुक है, और मैं जब से पढ़ा रही हूँ तब से स्टूडेंट्स बोलते आए कि मैम बुक आप लिखिए, क्योंकि आपने पढ़ाया है तो हम पता है, आपको पैटर्न पता है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो फाइनली वी हैव, आई कुड से दिस इज आवर बेबी एंड नाउ वी हैव गिवन दिस बेबी टू यू. और इस बुक में वो सारी चीजें हैं जो अभी तक आपको शायद कहीं नहीं मिल पाई थी. मतलब खुद से बोलने की बजाय मैं बोलूंगी, आप जब तक इस बुक को खुद नहीं खरीद के देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा. बिकॉज इट हैज, वी हैव ट्राइड हियर एट दिशा अलोंग विथ मी. हमने इसमें कोशिश करी है कि हम जितने भी लूप होल्स थे अभी तक के और जो किसी भी करंट टेक्स्ट में नहीं है जो चीजें, वो हम इसमें आपके लिए लेकर आए. बिकॉज अल्टीमेटली जैसे टाइम है, 3 महीने में पढ़ना है, 4 महीने में पढ़ना है, तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिनको पेपर 1 के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो दिस कुड बी योर गो टू गाइड, गो टू बुक, गो टू टेक्स्ट. आप इसको पढ़िए एंड यू विल गेट टू नो. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज इसमें वी हैव एड्रेस द रीसेंट थिंग्स, लाइक जो जैसे पुराना जो पूछते थे 3 साल 2 साल पहले भी कुछ चीजें नहीं पूछी जाती थी, वो अभी पूछी जा रही हैं. तो वी हैव ट्राइड टू हैव एवरीथिंग हियर एंड ऑफ कोर्स द रीसेंट क्वेश्चंस, जैसे 2022 के क्वेश्चंस, द रीसेंट व्हाटएवर PYQs हैव बीन आस्क्ड. और हमने इसको बीच में, लाइक यू नो, इफ यू रीड द बुक यू विल फाइंड कि हर थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन है. यू विल बी एबल टू रिलेट कि अच्छा ये थ्योरी पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया है. So that way you will be on track. So yes, I would say कि it's something that they should surely go for it. And they can trust it. They can trust it totally. So जैसे कि तोशिबा मैम ने बताया कि इस बुक में आपको सारा कुछ जो भी मिलेगा वो एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने लगे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर सारा टेक्स्ट मिलेगा. सो सबसे बड़ी बात तो आई गेस यही है, बिकॉज जो और यूजीसी की बुक्स हैं अभी मार्केट में नेट की, उनमें बहुत ज्यादा अपडेटेड सिलेबस अभी नहीं है. और एग्जाम ये इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, तो मतलब देयर आर सम न्यू थिंग बीइंग इंट्रोड्यूस्ड in every session of the exam. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं. और जैसे कि मुझे दिख रहा है बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में सब कुछ थ्योरी के अंदर ही PYQs आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं. सो आई एम श्योर इसमें बहुत टाइम लगा होगा ये चीज करने में. बिल्कुल, कि पहले आपने PYQs देखे कौन से टॉपिक से हैं, उसको एक्सप्लेन करना, उसको फिर चैप्टर में इनकॉर्पोरेट करना. बट ऑफ कोर्स जितना हमें मुश्किल लग रहा है आपके लिए उतना भी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर इयर्स. तो आपको तो टिप्स में होंगी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी. सो इसमें तोशिबा शुक्ला मैम ने अपना सालों का एक्सपीरियंस डाला है स्टूडेंट्स को गाइड करने का, पढ़ाने का. सो आई वुड से कि यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस बुक एंड you should definitely get it if you are a serious aspirant for UGC NET exam. और इसी के साथ लास्ट में मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि can anybody clear this exam? Yeah, you have to be very bright and very intelligent. No, not at all. I would say brightness is just a very subjective term. हर बच्चा bright होता है, but आपको उस टाइम पे क्या करना है, that is more important, right? And everything today आप अभी देखें तो it's about smart work rather than totally hard work. तो ऐसा नहीं है आपको बहुत ही पढ़ाकू टाइप और इतना मोटा चश्मा और आपने बहुत अभी पुराने टाइम पे, मैम मैंने ग्रेजुएशन में उतना नहीं किया. It's okay, it's totally fine. And this exam is more about your attitude rather than your aptitude. तो attitude को सबसे पहले सही करना है, वो हमारा प्रयास रहता है. Then this book is there, I am here. तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर सीरियस एस्पिरेंट, जैसे आपने बोला, that was a very important catch word, सीरियस एस्पिरेंट है तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे. थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग. तो थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला यहाँ पर आप आई और आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया. Pleasure is all mine. Likewise, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और I would be anytime available. I mean, if any such guidance is required to the students in the future as well. Of course, we do look forward to getting more insights from you and sharing it with our aspirant community. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you for having me. And all the best to all the aspirants. May you get success. Yeah.